Hello and welcome to the wonderful project that we are starting, which is called Curious Bate. My name is Priyank Jain, and I would like to share a small story with you. As far as I remember, be it in school, I was that one kid that always raised his hand asking questions and doubts to teachers to either learn or to just have fun. And as I moved on, as I got into college, as I got into business, as I got into networks, as I started meeting people, as I started learning more about spirituality and growth, I always had that innate curiosity in me to keep questioning what's happening, to understand and learn about everything. And that has got me where I am today. That has led me to get the opportunities that I have got today. And this project is an extension of me. It's an extension of what the whole idea about how I want to extend that part where I can learn from being health, physical and mental health, and number three, being spirituality and wisdom. So the idea of this podcast is that we will have leaders, we will have entrepreneurs, we will have visionary legends and so on in all these fields in the upcoming years and years to come. So today we have a very interesting guest with us. So stay tuned till the end of this episode and watch this to learn from the legend himself. Well, today on Curious Bate, we have one such personality with us who is almost achieved everything in his life and given back much more. We have Mr. Sugal Chandji Jain, who is the founding partner of Sugal and Damani, a company that has ventured into, that has made its, he started out as a pawnbroker and then started and made a fortune in the lottery business. And now they have their foot in the real estate business, in the information technology business, in the warehousing business, and a lot more. He is also the founder or the investor in more than 35 NGOs, and at the same time has done a lot of social activities for be it health camps, be it for cancer, be it for eye camps and all that, and benefited more than 8 lakh people across the country. So I'm very excited to have you, Sugalji, on our podcast. Thank you for coming. Thank you. Good morning. Thanks for inviting me. आई एम वेरी एक्साइटेड आपसे जब मैं लास्ट इतने दिनों से अब मेरा इंटरेक्शन रहा है इट हैज़ बिन वेरी हार्ट वार्मिंग बिकॉज जितने बार भी मैंने आपसे बात किया ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है. सो सीखने की बात करते हैं, आपने इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मोर देन 130 या 180 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यू हैव बिल्ट schools and everything, and you've also you've been the trustee of my school as well, which is Bhavans Rajaji Vidyashram at a point. So आप अभी का एजुकेशन देखते हो और जो आप अपने स्टार्टिंग जब आपने एजुकेशन किया था इतने सालों पहले, तो आपको क्या डिफरेंसेस दिखते हैं? क्या एजुकेशन इंप्रूव हुआ है? क्या वैल्यूज इंप्रूव हुए हैं? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एजुकेशन करंट एजुकेशन सिस्टम? फर्स्ट तो मैं आपको एक करेक्शन करूंगा कि वी हैव नॉट बिल्ट 130 इंस्टीट्यूशंस. वी हैव जस्ट बिकम वन ऑफ द पार्टनर्स इन डेवलपिंग दैम. Okay. Schools or whatever NGOs or wherever we are there, we have also joined with them. Right. Only very few we have founded. Right. And you asked me that आपके ज़माने की एजुकेशन कैसी थी और आज के ज़माने की एजुकेशन कैसी है, उसके अंदर क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? मेरे को उसके अंदर आज के ज़माने की एजुकेशन और पहले की ज़माने की एजुकेशन के अंदर बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस भी दिख रहा है और डिफरेंस नहीं भी है. डिफरेंस इस बात से दिख रहा है कि हमारे ज़माने में जो एजुकेशन हुआ करती थी, व्यक्ति स्कूल से निकलते ही अपनी रोटी खुद कमाना सीख लेता था. राइट. आज के ज़माने की एजुकेशन मैं देख रहा हूँ, स्कूलों में कॉलेजों में लोग डिग्रियाँ लेके आते हैं और फिर नौकरी की तलाश में खड़े रहते हैं. इवन संभ्रांत घराने के लोग जिनके खुद का व्यापार चलता, वो बच्चे भी आज की टाइम में सर्विस में जाना चाहते हैं. बोलते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है तो उसका उपयोग किया है. मैं यहाँ एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि पढ़ाई ज्ञानवर्धन के लिए, पढ़ाई रोटी के लिए नहीं. रोटी इज़ सेकेंडरी. खुद का ज्ञानवर्धन करने के लिए, रोटी कमाने के लिए बहुत से केसों के अंदर हम लोग व्यापारिक समाज के हैं. लड़के ने इंजीनियरिंग किया,
और फिर वो काम कर रहा है ग्रॉसरी शॉप का। आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट। इंजीनियरिंग करके 25,000 की या 50,000 की नौकरी के लिए खड़ा रहना, उससे अच्छा ग्रॉसरी शॉप के अंदर महीने का 2 लाख कमाना या 5 लाख कमाना। खुद का बिजनेस से खुद का बिजनेस, उसने कोई गलती नहीं की। सही है। हम मेरे ही एक परिचित है, वो अभी नो मोर है, ही हैज़ डन, आज से 40 साल पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और तिंडीवना में उन्होंने ग्रॉसरी की शॉप की। व्हाट इज़ रॉन्ग? लेकिन अभी युग सोचता है कि नहीं, जैसे लोग सीए करते हैं, फिर सीए करने के बाद इमीडिएटली वो जॉब में ही जाना चाहते हैं। क्यों? दे कैन बी ऑन देयर ओन प्रैक्टिसिंग और डूइंग देयर ओन बिजनेस। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के सीईओ सीए हैं, तो क्यों नहीं वो सीए खुद अपना कुछ धंधा कर ले। हमारे ज़माने में जब हम लोग, जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी का एक ही मंत्र का मेरे को कहा कि बेटा तू जिस दिन क्लास में फेल हो जाएगा उस दिन तेरी स्कूल बंद, दुकान पे आके बैठ जाना। ऐसा आपको क्लियरली बोल दिया? क्लियर एंड नो ट्यूशन। अच्छा। तो मैं पीयूसी में ड्रॉप आउट हो गया, तो मेरे को दुकान पे बैठने को मिल गया। मतलब 12th की एग्जाम या 10th की? 12th। 12th की एग्जाम। पहले एसएसएलसी 11 तक होती थी, कॉलेज में पीयूसी, उसके बाद 2 साल की ग्रेजुएशन होती थी, 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी। उसके पहले 2 साल की इंटर और 2 साल की ग्रेजुएशन होती थी एसएसएलसी के बाद में, 11 के बाद। तो एजुकेशन सिस्टम क्यों चेंज करते हैं वो उनको ही पता नहीं है। आखिर साल तो उतने ही लगने हैं। तो मैं दुकान पे बैठ गया एंड आई वाज अराउंड 17-18 ईयर्स ओल्ड। आपने 17-18 में ही, बिकॉज आपने 12th में ड्रॉप आउट होके आप डैड के शॉप में बैठ गए। उस समय हमारा पाउंड ब्रोकर बिजनेस था। ओके। तो हमने कहा भाई कि इस बिजनेस का गुरूर क्या है। यदि मैं नौकरी पे जाता तो 30-40 रुपये महीने की नौकरी मिलती। अच्छा, 30-40 रुपये? हाँ, पर महीने। लेकिन उस 30-40 रुपये की आज वैल्यू ज़्यादा है। ओके। 40 रुपये में 4 ग्राम सोना आता था। 4 ग्राम सोना है, बराबर। हाँ, तो आज 4 ग्राम सोने के लिए 20,000 रुपया देना पड़ता है। बराबर है। तो नथिंग हैज चेंज। आज भी वही 40 रुपया ही है। इन्फ्लेशन खाली आ गया। हाँ। तो मैं दुकान पे बैठ गया। दुकान पे बैठने के बाद मैंने पाउंड ब्रोकर, वैसे मैं 10 साल का था तब से फादर के साथ दुकान पे बैठता था, लेकिन उस समय तो जो वो कहते थे वो करना था, खुद का दिमाग अप्लाई नहीं करना था। अच्छा। जब मैं एसएसएलसी में फेल होकर दुकान पे, पीयूसी में फेल होकर दुकान पे बैठा, तो अभी मेरे को भी कुछ करना है। तो हमने देखा भाई कि जो पाउंड ब्रोकर है तो ब्याज का बिजनेस है, तो इट इज़ लाइक घास डेली उगती है। राइट। आप काटो तो भी उतनी ही मिलेगी और नहीं काटोगे तो भी इतनी रही। काटोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हर दो वो उगती है। तो पाउंड ब्रोकर बिजनेस, ब्याज के बिजनेस के अंदर भी आप जितना ब्याज कलेक्ट कर पाते हो जल्दी उतना ही आपका मुनाफा ज़्यादा है। राइट। और बैंकें वैसा ही कर रही है। पहले क्वार्टरली कंपाउंडिंग करती थी, अभी मंथली कंपाउंडिंग कर रही है। राइट। तो जो ब्याज वो ले रहे हैं 10% ले रहे हैं, तो वो 12 पड़ जाता है उनको, विदाउट इवन पेनल इंटरेस्ट। सो जब आपने आपके डैड के साथ काम करना स्टार्ट किया एट अ वेरी अर्ली एज, तो ऐसे क्या चीज़ें थी जो आपने उनसे उस टाइम सीखी जो आपको आज तक काम आ रही है? मैं यही बताऊँ ना, जस्ट मनी मैनेजमेंट। सी अभी पहले हम लोग 1,000 रुपया भी घर में एक दिन के लिए नहीं रखते थे। इट वॉज एक्यूमुलेटिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोगों की ये थियोरी थी कि ब्याज घर में नहीं उगता है, रुपया घर में नहीं उगता है, रुपया बाहर ही उगता है। किसी को देने से ही रुपये का 1 रुपया 1 पैसा होगा। कि फॉर एग्जांपल उस समय 9% इंटरेस्ट चलता था, राइट, या 12% इंटरेस्ट चलता था। तो अभी 1,000 रुपया मेरे घर में पड़ा है, तो मैं एक दिन पड़ा तो मेरे को तो 25 पैसे का लॉस हो गया, 4 आने का लॉस हो गया। इंटरेस्ट नहीं मिला है, उसका इंटरेस्ट नहीं। यदि मैं किसी को दूँ तो मेरे को उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो ज़्यादातर घर के अंदर पैसे को होल्ड करके नहीं रखना, और डेड इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोई एसेट्स मत खरीदो। पैसा व्यापार में उधार लेना है तो व्यापार के लिए लेना है, एसेट खरीदने के लिए नहीं लेना। और आज तक मैंने कभी एसेट खरीदने के लिए उधार नहीं लिया। एसेट मतलब इट कैन बी इवन ज़मीन खरीदना या मकान खरीदना। अभी लोग ईएमआई पे फ्लैट्स लेने की आदत है सबकी, उसमें भी ब्याज के व्यापारी लोग भी लेते हैं। तब मेरे को थोड़ा, जो नॉर्मल आदमी लेता है भाई वो समझता नहीं है ब्याज को, बरोबर है। लेकिन जो फाइनेंशियर्स हैं, ब्याज के व्यापारी हैं, जिनका काम भी ब्याज का है, वो भी उसको ईएमआई पे लेते हैं।
तो दे आर नॉट वेरी मच क्या कहते हैं कि कैलकुलेटिव। राइट। तो आप बेसिकली बता रहे हैं कि अगर आपको लोन लेना है तो आप लोन उसी के लिए लीजिए जिससे आप पैसा कमा सके, ना कि अपने एसेट्स खरीदने के लिए, ना कि अपने जो स्टॉक्स या जो भी एक चीज़ें हो गई। सो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने आफ्टर आपके डैड का बिजनेस, आपने पॉन ब्रोकिंग बिजनेस किया, कुछ समय बाद आपने अपना एक नया बिजनेस जो आपको लॉटरी का वेंचर दिखा, आपने वहाँ पे स्टार्ट करने का प्लान किया। तो आपका वो स्टार्टिंग फेज, वो ट्रांजिशन कैसा था जब आपको अपने डैड के ऑफिस से निकलना था? आपने आपके पापा से कैसी बातें हुई, और जब आपने स्टार्ट किया तो अब आपका लाइफ कैसा था, आपने कैसे स्टार्ट किया? आई जस्ट कम टू टेक 5 मिनट्स दिस कि मैं पान ब्रोकर बिजनेस में बैठा, वहाँ वहाँ कुछ बदलाव लेके आया। अच्छा। तो आई गेन पेरेंट्स कॉन्फिडेंस कि भी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अभी क्या होता है कि बच्चे सीधा रिवोल्ट करते हैं, ले जाके डैड को बोलते हैं कि 50 लाख लगाना, 1 करोड़ लगाना, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, विदाउट प्रूविंग दमसेल्व्स कि दे कैन डिलीवर गुड्स। तो फिर डैड मना कर देते हैं, तो उसको फिर मन में तकलीफ होती है। मैंने ऐसे नहीं किया। तो जो पान ब्रोकर बिजनेस था, उस बिजनेस के अंदर ही डैड 10,000 कमाते थे उस रकम से, तो मैंने उसमें 10,500 किया, 500 रुपये ऐड किया। उनको लगा भी कि लड़के में कुछ अक्ल है, दिमाग है। राइट। उसके बाद मैंने ज्वेलरी ऐड की उसके अंदर। वो हमने थोड़ा दिन ज्वेलरी का बिज़नेस भी किया, लेकिन उस समय ज्वेलरी के बिज़नेस के अंदर कानूनी प्रॉब्लम्स भी बहुत थे। तो हालांकि उसके अंदर प्रॉफिट था, लेकिन हमने उसको बंद कर दिया। उसके बाद मैं गया एजेंसी बिज़नेस के अंदर, कैटल फीड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फिर मैं बना LIC एजेंट। LIC एजेंट भी बन गया? LIC एजेंट बना। LIC एजेंट बना तो वो भी काम 2 साल किया। उसमें क्या, रोज़ सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के मिलने के लिए जाना, वो अपने से हुआ नहीं। हाँ, पॉलिसी बेचना, लोगों को कन्विंस करना, लोग कल आना, परसों आना, 10 अभी के जैसे नहीं थे, लिक्विडिटी नहीं था भाई। अभी भी कंपटीशन है, लेकिन लिक्विडिटी, लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको लेना है वो ले लेता। उस समय लोगों को समझाना भी पड़ता था। फिर लोगों को बोलता था कि मरेगो तो मिलेंगे यार, मरने की मैं पहले ही क्यों सोचूं। तो ये भी बात होती थी। तो इसीलिए वो भी मैंने 2 साल करके छोड़ दिया था। उसके बाद लॉटरियाँ यहाँ चालू हुई थी। तो चालू हुई थी लॉटरी 1970 के अंदर, 69 के अंदर। ये तो मेरी जर्नी स्टार्ट फ्रॉम 1962। तो इतने 7 साल निकाल दिए ना मैंने। 3-4 साल कैटल फीड का किया, 2 साल वो क्या कहते हैं पॉलिसी का किया। फिर वो तो सब एक हमने इजी वॉच स्कीम भी हम लोगों ने निकाली थी, वॉच सेविंग स्कीम भी, वो भी कुछ टाइम के लिए की साइमल्टेनियसली। लेकिन हमारा जो पाउंड ब्रोकर बिजनेस था वो चालू था। दैट डजंट स्टॉप, दैट बिजनेस वाज जस्ट गोइंग ऑन देयर। तो हम उस बिज़नेस को करते ही गए। तो फिर लॉटरियाँ चालू हुई, तो लोग लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते थे। उस समय तमिलनाडु की लॉटरी आई थी, इट इज़ समटाइम 1969। पीपल आर स्टैंडिंग इन लाइन्स एंड बाइंग। और जो लॉटरी एजेंट होता था वो तो उसकी एश्योर्ड इनकम हो जाती थी महीने की 5 हज़ार की। 10% कमीशन गवर्नमेंट देती थी और वो पूरा रिटेल में बेचता था। तो मैं भी कुछ टिकट खरीदता था। तो फिर मेरे को लगा यार कि इसमें कुछ अपन भी कर सकते हैं लाइन में भी। तो हमने हरियाणा गवर्नमेंट को 100 रुपये का ड्राफ्ट भेजा, और वहाँ 100 रुपये का 100 टिकट के लिए 1 रुपये की टिकट थी, 100 टिकट के लिए 100 रुपये का ड्राफ्ट भेजा। तो उसमें उस समय वो हरियाणा गवर्नमेंट 25% कमीशन देती थी, और 25 रुपये उनका एजेंसी फीस भी था। तो मेरे 100 रुपये में 100 टिकट भी आ गए, और एजेंसी फीस भी चली गई। वो 100 टिकट को मैंने 2-4 दुकानों के अंदर 10-10, 15-15 टिकट करके रखा 10% कमीशन से। सही है। तो टाइम में बिक गया। तो फिर हमने 375 रुपये का ड्राफ्ट भेजा उनको। ऐसा नहीं कि हमने डे 1 ईयर तरो 375 का ड्राफ्ट भेजा, 500 टिकट आई। तो हम लोग 10% 15% कर दिया हमने, क्योंकि हम लोग पाउंड ब्रोकर थे। तो पाउंड ब्रोकर में 2% इंटरेस्ट आता था महीने का, बरोबर है। और यहाँ हाथों हाथ 10% और 15% मिल रहा था। तो इट वाज मोर लिक्विडेटिव। और फिर जैसे तमिलनाडु लॉटरी नहीं मिलती थी तो लोग हरियाणा की टिकट भी खरीद लेते थे। तो सेकंड हमने कंसाइनमेंट भेजा 3,750 रुपये का, सीधा इंटू 10 टाइम। लेकिन वो लोग 15% भी, होलसेल में 15% का मार्जिन रखते थे। हमने फिर उसको मार्जिन को घटा के 10% 5% पे लेके आ गए, क्योंकि हम तो ब्याज वाले थे। 2 रुपया महीने में मिलता है, यहाँ तो 15 दिन में 5 रुपया मिल रहा है। तो कॉस्टिंग आपने कम कर दी वहाँ पे? हाँ, अपने। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लॉटरियाँ इंट्रोड्यूस हुई,
और महाराष्ट्र में भी बनिए लोग बहुत लॉटरी में आ गए थे, व्यापारी लोग। तो उन्होंने समझा भाई कि लास्ट दिन माल खूब बिकेगा, तो बहुत लोगों ने स्टॉक कर लिया, गवर्नमेंट से ज़्यादा माल खरीद लिया। राइट। जैसे जैसे ड्रॉ की तारीख नज़दीक आई, उनको हार्ट बबल करने लगा, क्योंकि बिक रहे नहीं थे। ना बिक नहीं रहे थे। तो फिर सब वो लोग मद्रास लेके आए टिकट, बहुत से लोग। फिर हमारा धंधा बढ़ा, रोज़ का 10,000, 20,000, 50,000 का माल बिकता था, और आपस में स्पर्धा भी बढ़ी। तो हम लोगों ने उसको क्वार्टर 0.12% प्रॉफिट पे काम करना चालू कर। हमने सोचा तब भी हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि 30 इंटू 2 आना 12 पैसा, 360, तो भी 4% रिटर्न आ रहा है। राइट। और गिरी में तो 2% ही आ रहा है। तो अब हर चीज़ उससे कंपेयर करने लगे। हाँ, एंड देन ऑल दी जो प्लेयर से ज़्यादा मार्जिन वाले, वो सब हट गए। इन बिटवीन कुछ प्लेयर्स बॉम्बे से भी यहाँ के आके धंधा कर रहे थे, तो वो भी 0.2% के अंदर, वो भी उनका भी फिर होटल का खर्चा वगैरह। हमारा तो कोई खर्चा था नहीं, घर में ही रहना, वही दुकान, तो वो लोग भी निपट गए। फिर हम लोग बच गए। तो हम लोगों ने 1% मार्जिन चालू कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के स्टॉकिस्ट बन गए, तो गवर्नमेंट ने हमको 2% किया। एंड लाइक दैट स्लोली वी गॉन ऑन। इट इज़ नॉट दैट ओवरनाइट वी रीच द हाइट्स, it took years for us to reach the heights. But once you reach at certain goal, then the going up will become little faster. पहले आपको 100 रुपया कमाने के लिए जो तकलीफ उठानी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, बाद में 1000 में उतनी नहीं पड़ती और लाख में उतनी नहीं पड़ती, और फिर करोड़ महीने में उतनी और भी कम हो जाती है, यदि आप अपने काम को ईमानदारी से करो। काम को जब तक आप खुद ईमानदारी से नहीं करो, you should not, normally we cheat ourselves, we don't cheat others. मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि इसको टाइम लगा, जब आप लॉटरी के बिजनेस में भी आए आपको काफ़ी टाइम लगा। आपने 100 टिकट से चालू किया, फिर 300, फिर 3,000, फिर उससे आगे आगे आप जाते रहे। तो उस टाइम पीरियड में स्टार्टिंग में आपने क्या सीखा इस वे में कि आपका पर्सनल लाइफ में आपने कुछ तो कटौती की आपको करनी पड़ी होगी स्टार्टिंग में, जब सेटअप करना होगा आपको। तब हम लोग सुबह 6 बजे दुकान खोलते थे। 6 बजे? 6 बजे, 5-5:30 बजे उठ जाते थे, 6-6:30 बजे दुकान खोलते थे, क्योंकि सामने वाला दुकान हमारे से बेंगलुरु मेल, सुबह बेंगलुरु से जल्दी आ जाती है 5:30 बजे। तो हमारे कस्टमर्स बेंगलुरु मेल से आते थे, बेंगलुरु से उस समय। तो उनको सर्विस करने के लिए हम लोग 6 बजे दुकान पे आ जाते थे, नहीं तो हमारे सामने दुकान वाला 6 बजे खोल देता था। फिर नाश्ता मतलब बाकी आपका रूटीन जो है? तो 6 बजे वो दुकान खोलते थे, कस्टमर को सर्व करते थे, फिर नाश्ता वास्ता करते थे। लेकिन दुकान आते थे तभी स्नान करके आते थे, वापस स्नान करने के लिए घर नहीं जाते थे, नंबर 1। फिर बाद में रात को हम लोग पार्सलिंग की हमारा धंधा था, इट वॉज ए कमिंग अप बिजनेस। तो जगह जगह से लोग आते थे, लोगों को हम पहचानते नहीं थे। जैसे बिज़नेस सेट होता गया वैसे फिर पार्सल्स जानी चालू हो गई, लोगों का आना ज़रूरत नहीं रही, फ़ोन पे ऑर्डर आने लगे। तो रात को हम लोग 12 बजे इंडियन एयरलाइंस में जाके पार्सल बुक करते थे भेजने के लिए, क्योंकि रात को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो डॉक की फ़्लाइट जाती थी, जो चेन्नई नागपुर में हाल्ट होता था और सब जगह पहुंचती थी। बाकी जो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स होती थी 6 बजे 5 बजे की, बेसिक साउथ में जाने के लिए, तिरची, मदुरई, कोयम्बतूर, कोचीन, तो वो सब फ्लाइट से मॉर्निंग निकलती थी। तो हम रात को 10-11 बजे जाके बुक करते थे। उसके बाद आके घर जाके खाना खा के आधा घंटा पंचायती करके मैं, फादर और ब्रदर तीनों मिलके उस दिन की समीक्षा करते थे और कल के लिए क्या करना उसके लिए डिस्कशन करते थे। फिर हम सोते थे, करीब 12 बजे 12:30 बजे सोते थे, फिर वापस 5:30 बजे उठना। दिन में कभी सोना नहीं उस समय तक, क्योंकि काम रहता था, कस्टमर सामने रहता था, और नहीं कस्टमर है तो कस्टमर इंतजार। उस समय मेरी रीडिंग हैबिट भी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारा फादर का था कि दुकान के ऊपर बैठते हो जिस समय कोई किताब नहीं पढ़ना, फिर तुम्हारा कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, किताब के अंदर ध्यान रहेगा। और किताब में ऐसा कथानक आ जाएगा तो कस्टमर को सर्विस करते समय भी कस्टमर की फुल रिक्वायरमेंट तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगी। बरोबर है। वो 100 में लेने के लिए तैयार रहेगा, तुम 99 में देखोगे शायद वो नहीं ले रहा, क्योंकि तुम्हारे को जल्दी रहेगी वापस उसको आगे पढ़ने की। तो तब मेरी वो रीडिंग हैबिट भी उस समय बंद होगी। जब तक हम खाली पाउंड ब्रोकर बिजनेस में थे तब तक मेरी रीडिंग हैबिट भी थी अच्छी, क्योंकि उसके अंदर कस्टमर रोज़ के 5-7 आते थे, 10 आते थे। दोपहर में 12 से 3 कोई कस्टमर नहीं आता था, काफ़ी टाइम मिल जाता था। काफ़ी टाइम मिल जाता था। लॉटरी में आने के बाद वो टाइम हमारा
वैसे ही निकल गया. तो दैट वाज द रीज़न वी केम अप इन लॉटरी बिजनेस. फिर अकाउंटिंग सिस्टम, हम लोग एक एक टिकट का हिसाब रखते थे और डेली शाम को हम उसको चेक करते थे, स्टॉक मिलाते थे कि आज 10,000 टिकट आए, उसमें 9,320 बिके, क्योंकि फुटकर में भी बेचते थे, तो अंदर 680 है कि नहीं. मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे यहाँ चोरी नहीं हुई, हमारे यहाँ चोरी हुई, लेकिन हमको मालूम पड़ गई. तो चोरी करने वाला भी 4 बार सोचता था. क्योंकि इतना आपका क्लियर था अकाउंटिंग सिस्टम्स. हम पहले उसको 50 देके फिर बाद में हमारे यहाँ खोजते थे बरोबर. कहाँ गए. हम कस्टमर को कभी अविश्वास नहीं करते थे. अगर उन्होंने बोल दिया तो अब चेक करने की जरूरत नहीं. नहीं, पहले हम check बाद में चेक करेंगे. करेंगे. वो पहले एक बार एक टाइम तो उसका हम पूरा, ताकि कस्टमर के ऊपर, क्योंकि कस्टमर आपको घड़ी घड़ी तो चीट नहीं कर सकता ना. आपने 25 लोगों को पार्सल भेजा है, कस्टमर को तो एक जगह से ही पार्सल मिला ना, तो ही श्योर दैट वेयर ही हैज़ गॉट शॉट. और महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बोलता है तो वो गलत तो नहीं है. रोज़ बोलेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि ये बदमाश है करके. तो देन यू कैन चेंज हिम और यू कैन टेक योर ओन कॉल. राइट. So we always had this principle. My father, dad had the principle. Customer is always right. He is not wrong. मेक सेंस. If at all wrong, we are wrong. वेरी बिग लर्निंग. तो आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली. जैसे आपने बताया कि जब आप बिजनेस करते हो आपका इंटेग्रिटी, आपका ऑनेस्टी आपके खुद के साथ होना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं. और प्लस जब आपने स्टार्ट किया, आपने स्टूडेंट्स के लिए भी आपने काफ़ी एडवाइस दिया. अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपने ऑफिस में तो आपने डे एंड नाइट काम किया जब आपने डैड से अलग हुए बिजनेस में, तो बट आपका पर्सनल लाइफ कैसा था उस टाइम पे? पर्सनल लाइफ में आपके चैलेंजेस थे, स्मूथ था या कैसा? There was no challenges in personal life. She was very supportive. कि जैसे मैंने कहा भाई कि मैं 73 में फादर से अलग हुआ था, तो इमीडिएटली 4-5 महीने के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो सी गेव हर ज्वेलरी टू बी गेट प्लेज्ड. लेडीज़ में नॉर्मली उनकी ज्वेलरी के ऊपर बहुत प्रेम रहता है. वो देती नहीं है, हस्बैंड को भी नहीं देती है. लेकिन शी वॉलंटरली गेव इट. और जब और महीने भर के बाद और ज़रूरत पड़ी तो उसने अपने पियर में बोले, मेरे सास जी की मेरे ऊपर बहुत प्रेम था, तो जब अलग हुआ तो वो मेरी वाइफ को बोलते रहते थे कि तुम्हारे को कभी पैसे की ज़रूरत है तो मंगा लेना. बरोबर. तो उनका भी आपको सपोर्ट मिला? तो उनका भी फ़ोन करते ही नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को पैसा आ गया. फिर मेरे मामा जी थे, कभी मेरे को पैसे की ज़रूरत, ये सब दिस आई ओवरकेम इन ए ईयर और सो. क्योंकि मैं अलग होते काम चालू किया तो मैंने कभी ज़्यादा कमाने के लिए काम चालू नहीं किया. ज़्यादा कमाई हो गई वो अलग बात है, लेकिन मैंने काम चालू किया महीने का 1,000 रुपये कमाने के लिए, 800 से 1,000 रुपया. उसकी भी गिनती थी कि 200 रुपया दुकान का किराया, 150 रुपया घर का किराया, 300 रुपया घर खर्च के लिए, 350 रुपया, 100-200 बच्चों की स्कूल फीस के लिए, उसके लिए, तो टोटल 800 से 1,000 रुपया. तो उसी को मैंने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बनाया कि हाउ टू गेट 1,000 रुपीज़ पर मंथ. राइट. तो उसके लिए मेरे को रोज़ के 100 लॉटरी टिकट रिटेल में बेचने थे और 2,000 के लॉटरी टिकट होलसेल में बेचने थे. ओके. तो मेरे को रोज़ के 30 रुपये मिल जाते. 30 इंटू 30 900 रुपीज़. 900 30 इंटू, क्योंकि मैं तो गांव में पढ़ा हुआ ना, तो इसीलिए पहाड़े वगैरह अच्छे आते हैं. शहर में पढ़ने वाले लोगों को कंप्यूटर की चाहिए या कैलकुलेटर चाहिए. एंड दिस आई अचीव्ड विद इन 3 months ऑफ माई स्टार्टिंग द बिजनेस. आई डिडंट एम्प्लॉय एनीबडी फॉर फर्स्ट 3 months. देन आई एडेड 1. आफ्टर 6 months आई एडेड 2. जैसे जैसे द मैनेजमेंट थियरी में मैंने पढ़ा था कहीं कि आपको 1.5 आदमी की ज़रूरत रहे तभी आप 1 आदमी को एम्प्लॉय करो. तो फिर मैंने जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी एक आदमी को एम्प्लॉय करता गया एंड काफ़िला बढ़ता गया. जब जब बिज़नेस में चैलेंजेस आए, गवर्नमेंट ने बैन किया, हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया, वापस धंधा चालू किया. एंड 1969 से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए अभी हम लोग 2021 में आ गए. अभी भी धंधा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चल ही रहा है. तो वी वर नेवर के जैसे बंद हो गया तो उस समय हमने गैर कानूनी काम नहीं किया. और लोग करते हैं, हम लोगों ने नहीं किया. बंद हो गया तो बंद हो गया, हमने बंद कर दिया. तो उस समय हमने नए एवेन्यूज़ कुछ मिल सके हैं वैसा खोजने की कोशिश की. तो मैंने मेहंदी का व्यापार किया उसके बीच में. मेहंदी आपने क्या नहीं किया है? किस बिजनेस में आप नहीं गए हो वो आप बता दीजिए. कि मेहंदी हम राजस्थान के हैं तो सोजत से मेहंदी मंगाई, उसके पैकेट्स बना के रिटेल में बेचे. लेकिन 1 महीने के बाद कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया, वापस लॉटरी चालू हो गई, वापस लॉटरी में चले.
फिर और एक बार बंद हुआ तो हमने पेन का व्यापार चालू किया, फाउंटेन पेन, बॉम्बे से पेन मंगाए। मेरी दुकान ट्रिप्लिकेन में मेन रोड के ऊपर थी, तो आजू बाजू में स्कूलें बहुत थी, तो हमने पेन का व्यापार चालू किया। क्योंकि अपना हमारा गोल यही था ना कि दोनों टाइम की रोटी अच्छी मिल जाए। उसके बाद जो कमाई हो वो कमाई है, तो फिर डेवलप होते ही गए। डेवलप हुआ तो आपके पास ज़्यादा कमाई आ गई, जो ही ज़्यादा कमाई आ गई और आपने डेवलप किया, लेते हैं वो खरीद लेते हैं, दे आर नॉट एबल टू डेवलप देयर बिजनेस। व्हेन यू लर्न वन बिजनेस, then you go on making research and make yourself how you can progress। और जो ऐसा करते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, और जो वहीं ठीक है संतोष धर लेते हैं, भाई चलो अपने महीने के 1000 रुपये कमाई हो रही है, 200 बच रहा है, 200 का हमने 2 ग्राम सोना ले लिया, रख लिया, तो फिर देन दे बिकम स्टैटिक। राइट। तो मैं वापस आई वॉज पोरिंग माई मनी बैक इन द बिजनेस। बैक इनटू द बिजनेस। फर्स्ट तो लोन रिपेमेंट, जितना लोन आपको इमीडिएटली विद इन 1 ईयर वी वर एबल टू रिपे। ओके, जो भी आपने फैमिली से हाँ, borrow किया है, और जो मैंने बैंक से गोल्ड लोन पे वो लिया था उसको मैंने 2-2.5 साल के बाद रीपे किया, लास्ट में ही उसको रखा। मैं बोला इसमें एकदम ज़्यादा सरप्लस होंगे तभी रीपे करेंगे, राइट। नहीं तो बैंक का कहीं जाने वाला नहीं है। और गोल्ड का भी भाव उस समय अप्रिशिएट हो रहा था, दोनों चीज़ें थी, तो हमने उसको वैसे ही रख दिया। नहीं तो मैं तो हरदम एसेट्स को भी बेचने में रहता हूँ, नॉट टू पे इंटरेस्ट। राइट। इंटरेस्ट वर्क्स 24 hours, 24 into 7 without break. राइट। Nobody else in this world works so hard as interest. इंटरेस्ट वर्क्स 24/7। 24 into 7 into 365. No holiday for it. भले जोर के का कोरोना आ गया तो भी इंटरेस्ट को हॉलीडे नहीं हुई। बाकी लोगों का सब धंधा हो गया, बैंकों ने ब्याज माफ़ नहीं किया। और कोई राष्ट्रीय नेता मर जाता है, ऑफिसेस बंद हो जाती है, व्यापार बंद हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट कभी बंद नहीं हुआ। ये बारिश के कारण बंद हो गई, तूफान के कारण बंद हो गई, earthquake के कारण बंद हो गई। फॉर बिजनेस वेयर यू कैन मल्टीप्लाई इट, बट डोंट बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कि भाई कि आज मकान लेंगे, 10 साल के बाद मकान का भाव डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट पे कर दो। आप अपने जीवन काल में भी देख सकते हो कि जब भी आपने किसी 100 रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी, आज वो 2000 की हो गई है, लेकिन यदि आप 12% या 9% कंपाउंडिंग करोगे तो वो 2500 हो जाएगा। बरोबर है। तो यदि आपने ब्याज पे लेके लगाया तो आपका 500 गया। हाँ। घर का पैसा लगाया तो ठीक है, 2000 हुआ तो ठीक है, 1900 है तो भी ठीक है, 1800 है तो भी ठीक है, 500 है तो भी ठीक है। क्यों, कहीं ना कहीं पैसे को पार्क तो करना ही है, नहीं तो अंदर तिजोरी में रहेगा तो फिर उसके अंदर वहाँ वाइट एंट लग जाएगी, तो वैसे ही चला जाएगा। तो फर्स्टली मैं आपने जो भी बताया उसमें से 1-2 पॉइंट्स जो मेरे को बहुत अच्छे लगे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में पूरे फैमिली का सपोर्ट मिला आपको। 100% सपोर्ट मिला। बच्चों को भी, बच्चे तो वैसे भी छोटे थे, कहने का मतलब है कि इन 73 द फर्स्ट बॉय वाज अराउंड 5-6 years old, डॉटर वाज अराउंड 5 years old, विनोद वाज अराउंड 3-4 years। So in your success, the whole family has a role behind me behind. because I was traveling a lot। 1 महीने में 2 महीने में एक बार मेरे को नॉर्थ जाके आना पड़ता था, दिल्ली एंड लखनऊ। तो आई यूज्ड टू गो बाय मॉर्निंग 6 और इवनिंग फ्लाइट टू चेन्नई। तो 3 दिन हम किराए के मकान में रहते थे, फैमिली अकेली रहती थी। वो मकान भी हम 400 स्क्वायर फीट का एक बेडरूम, हॉल, किचन था, नीचे लैंडलॉर्ड रहता था। अच्छा। तो दे स्टेट देयर वाज नो ग्रीवेंस, नथिंग। सो दे ऑल सपोर्टेड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो कोई माइंड में टेंशन नहीं था। एक वो चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली, और दूसरा आपने बोला कि जब 1.5 लोग चाहिए तभी एक से काम लेना है, एक नए आदमी को एक रखना। नए आदमी को ऐड करना है। और आपके जर्नी में आगे बढ़ते 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 आपने तो इतने लोगों को एम्प्लॉय किया है, फिर आप यू हैड ड्यूरिंग योर होल करियर, तो हाउ टू चूज अ राइट पार्टनर एंड हाउ टू, बिकॉज यू आर द राइट बेस्ट पर्सन टू टेल गिव अस द आंसर कि कैसे एक पार्टनर को चूज करना और किस टाइप के लोग को नहीं करना, वो कैसे फाइंड आउट करें। पार्टनरशिप में ऐसा है कि फॉर मी दे आर ऑल बाय डिफ़ॉल्ट ओनली। आई डिडंट गो फॉर एनीबडी चूजिंग और सेलेक्टिंग। ज़िंदगी के अंदर आपसे आप जुड़ते गए। देन पार्टनरशिप स्टेज लॉन्ग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर गिवर एंड टेकर्स। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू गो फॉर चूजिंग ए पार्टनर और द पार्टनर कम्स एज ए टेकर ओनली। उसने ₹1,00,000 लगाया तो हर देखता हर साल मेरे को कितना मिल रहा है इससे,
he doesn't contribute in by way of any ideas, or it's not necessary that he should come and sit 24 hours there, but he should participate in the discussions. He should find a place, his words should find a place in the discussion. He should not just only think how much I get, how much I get, how much I get, ये मेरे को इतना कम आ गया. Active participation होना चाहिए. Active participation, mentally or physically. Right. So luckily we got all good partners, and some I had one partnership where I withdrew myself because there the partners, all the partners were big businessmen, but everybody wants to take only some reason. First year itself you must see whether he is a contributing he is only a taker or a giver. Right. Partner should be both giver and taker, both होना चाहिए. So basically give and take relationship दोनों होना चाहिए. And गिवर का मतलब वही मैंने कहा ना कि not only money wise but even active participation in discussion. आइडिया डिस्कशन या At the same time उसके क्या values होने चाहिए वो partner के. पार्टनर के जो अपने whatever values we have, the same value he should have. Same value. Yeah. Similar values. Similar he should not try to cheat us. ये बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पार्टनरशिप होती है, अभी ग्लासेस है, कंपनी खरीद के आती है 10 रुपये में, वो फिर पार्टनर दूसरी ला के रिप्लेस करके वो सेल ही नहीं बताता है. All those things. So they are also they can't go for a long time. But do you think same values, same religion या same caste वाले partners में ही मिलते हैं या? And it is not necessary that it should be the same caste. अभी हमारी जो partnership है, President Sugal and Damani, we are from three different locations. One is Marwadi, one is Gujarati Kathiawadi, and another is Gujarati Jain. Right. एकदम. और बाद में हम लोगों ने we encourage also people to take in our fold. One of our executive, he was doing well, so we took him as a partner also. Right. So ऐसा है कि you have to be totally open-minded in partnership, and always you should think that in partnership 1 rupee has got only 99 paisa. 1 rupee profit you should make it as 99 paisa, not 100 paisa. When you make it 100 paisa, then everybody pulls, then there is a difference of. मैंने कम पिया, आपने ज़्यादा पिया, आपने ज़्यादा पिया, मैंने कम किया, तो पार्टनर गिनता है यार मैंने तो इतना ही पानी पिया, इतना पी रहा है, और वो झगड़े आ जाते हैं कि इसके 2 रिश्तेदार आए कल 4 चाय पी के गए. शेयरिंग रेशियो पे झगड़े नहीं होते हैं, मोस्टली झगड़े इन छोटी छोटी बातों पे ही होते हैं. Okay. तो इसे यदि आप उसको 99 पैसे समझ लोगे तो छोटी छोटी बातें आपसे ही उसमें से निकल जाए. Let go कर दिया आपने. हाँ, तो देन पार्टनरशिप के अंदर झगड़े आने के चांसेस बहुत कम आ रहे हैं. अभी हमारी जो पार्टनरशिप चल रही है, दिस वाज फॉर्म्ड इन 1988 एंड नाउ इट इज़ 2021. Right. 2 जनरेशन हैव जॉइन. It's a long time. प्रसन्न भी आ गया, प्रसन्न का लड़का भी आ गया, विनोद भी आ गया, विनोद का लड़का भी आ गया. और वो 30 साल ऊपर 35 साल. 12 + 22 33 इयर्स पार्टनरशिप. टचवुड आज भी किसी के मन में कोई मतलब ये नहीं है, गोइंग ऑन स्मूथली. तो इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना ट्रस्ट, इतना लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में. एंड एट द सेम टाइम वो ओपन माइंडेडनेस. सो इस ऑल दोस थिंग्स विल कम इफ यू count that 1 rupee is equal to 99 paise. the base is that. Very well said. Thank you so much. Thank you. So don't forget to subscribe to our channel on YouTube, follow us on all these podcast apps, like this video, like this episode, show some love, because that is going to help us do more and more such conversations, and I can't wait for you to learn from this. Thank you.